الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تو کل ہم پڑھ رہے تھے حبشہ کی طرف ہجرت، مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت، اور آج کا جو سبق ہے وہ ہے ابو طالب کی گھاٹی میں. پیج نمبر 42 سے ہم پڑھ رہے ہیں ابو طالب کی گھاٹی. شعب ابو طالب، شعب یعنی گھاٹی، شعب کے معنی ہے گھاٹی. گھاٹی بولے تو کیا، یعنی پہاڑ کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں گھاٹی. جی. قریش نے دیکھا یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی، یعنی یہ کہ وہ حبشہ کو جب مسلمان گئے تھے اور وہاں جا کر بادشاہ کو جو دو لوگوں کو بھیجا تھا قریش نے کہ بادشاہ کے پاس جا کر کہیں کہ وہ جو مسلمان مکہ کے جو مسلمان تمہارے پاس آئے ان کو ہمارے پاس بھیج دو. تو پھر بادشاہ نے بھی وہ بات نہیں مانی، بلکہ بادشاہ نے مسلمانوں کو وہاں بڑی عزت و احترام سے رکھا. بہت ساری قریش نے مسلمانوں کو ستانے کی بہت ساری تدبیریں کی. جب قریش نے دیکھا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی، کارگر یعنی کامیاب نہیں ہوئی، کارگر یعنی کامیاب نہیں ہوئی، تو قریش کے سب خاندانوں نے مل کر نبوت کے 7ویں سال یہ معاہدہ کیا. نبوت کے 7ویں سال یعنی نبی ہونے کے 7 سال کے بعد 7ویں سال یہ معاہدہ کیا. یہ معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کیا، قریش نے مل کر ایک فیصلہ کیا. معاہدہ کیا یعنی فیصلہ کیا کہ کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جس کا نام بنو ہاشم تھا تعلق نہ رکھے گا، نہ ان سے کوئی شادی کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی سامان دے گا، یہاں تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں. تو یہ بائیکاٹ کیا قریش نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کیا. یہ ایک معاہدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. ابو طالب خاندان کے سب لوگوں کو لے کر ایک درے پر چلے گئے. درے یعنی پہاڑ کے بیچ کی جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں آزو بازو بڑے بڑے پتھر ہوں اور بیچ میں راستہ ہو یا جگہ ہو، بڑی جگہ ہو. تو ایک درے پر چلے گئے جو شعب ابی طالب کہلاتا تھا، اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں. یہیں دوسرے مسلمانوں نے بھی آ کر پناہ لی اور بہت تکلیف کے ساتھ یہاں رہنے لگے. درختوں کے پتے کھا کر گزر بسر کرتے رہے. اچھا، پناہ لی یعنی دوسرے مسلمانوں نے بھی آ کر یہاں پناہ لی، یعنی یہاں رہے، یہاں انہوں نے اپنی حفاظت سمجھی اور بہت تکلیف کے ساتھ یہاں رہنے لگے. درختوں کے پتے کھا کر گزر بسر کرتے تھے. سوکھا چمڑا ملتا تو اس کو بھون کر کھاتے تھے. بچے بھوک سے بلبلاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کچھ چھپا کر، بغل میں کچھ چھپا کر کہیں سے کبھی کبھی کچھ لے آتے تھے. کافر مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے. 3 سال اسی طرح گزر گئے. آخر خود ان ظالموں میں سے کچھ کو رحم آیا اور انہوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑ ڈالا. تو ایک روایت میں ہے کہ قریش نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے بالکل بائیکاٹ کریں گے اور بالکل
यानी उनसे खरीदेंगे नहीं और उनसे कुछ बेचेंगे भी नहीं। तो उन्होंने एक अहद नाम, सारे कुरैश के खानदानों ने, सारे लोगों ने मिलकर ये मुआहदा किया। सब लोग इकट्ठे हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ बायकाट करने लगे। और उस बायकाट के जो मजमून को लिखा था, उसका नाम था मंसूर इब्न इकरमा, उसने लिखा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सजा ये दी कि उसके हाथ शल हो गए, यानी उसके हाथ बिल्कुल खत्म हो गए। उसके हाथों को अल्लाह तबारक व तआला ने शल कर दिया। तो उसके बाद 3 साल मुसलसल ये बायकाट चला। तो बनु हाशिम, सबके सब बनु हाशिम से बायकाट। तो कुरैश ने सब बायकाट किया, तो उसमें तो बनु हाशिम में से अबू लहब जरा अलग हो गया, यानी कुरैश के साथ हो गया। अबू लहब का खानदान भी बनु हाशिम ही, लेकिन अबू लहब कुरैश के साथ हो लिया उसने। तो बहुत तकलीफ के साथ उन्होंने वो जिंदगी गुजारी 3 साल। बड़े लोग, न खाना मिलता और बड़े भूखे प्यासे वो जिंदगी गुजारते। वो अपनी तो ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन बच्चों की जो बिलबिलाने की आवाज आती थी, वो सुनकर उनको बड़ी तकलीफ होती थी। तो इस तकलीफ को देखकर जो लोग थे, कुफ्फारे जो मक्का थे बाहर, सुनकर बड़े खुश होते थे। बच्चों की बिलबलाने की आवाज सुनकर बड़े खुश होते थे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 साल के बाद उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने रहम फरमाया। और वो जो लटका हुआ, जो जिसमें वो मुआहदा लिख कर जो काबे में लटका हुआ था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दीमक लगा दिया। दीमक के कीड़े ने उस मुआहदे को क्या कर दिया, खाकर खत्म कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह हजरत जिब्राइल सलाम ने इत्तला फरमाई कि वो जो मुआहदा है उसको दीमक ने खाया है। तो बाद में किसी भी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस मामले पर, इस जालिमाना मुआहदे से अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमा ली। फिर उसके बाद है सबक अबू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात। तो ये 3 साल इस तकलीफ में गुजारे। उसके बाद मुसलमानों को दुर्रे से निकल कर अपने घरों में आए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा अबू तालिब ने वफात पाई। अभी इस गम को चंद ही रोज हुए थे कि आपकी गमगुसार बीवी, यानी गम हल्का करने वाली, गम गुसार, गम हल्का करने वाली बीवी, गम गुसार बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी इंतकाल कर गई। ये जमाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सख्त गुजरा। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही दो मुनिस और गमगुसार, यानी दिल बहलाने वाले, मुनिस यानी दिल बहलाने वाले, गमगुसार यानी गम दूर करने वाले, गम में साथ देने वाले, दोनों एक ही साल के अंदर आगे पीछे चल बसे। तो एक किताबों में लिखा है कि इस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज्न कहा, यानी गम का साल कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल। इसलिए कि इस साल में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी इंतकाल कर गई और आपके चचा अबू तालिब भी इंतकाल कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतें। कुरैश के जालिमों को अबू तालिब के रोब रोब दाब रोब दाब यानी अबू तालिब के डर ने और रोब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिहाज से अब तक खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। कुरैश के जालिमों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। उन इन दोनों के उठ जाने पर मैदान खाली हो गया। अब वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी से पेश आने लगे। एक दफा आप कहीं जा रहे थे कि किसी जालिम ने आपके सरे मुबारक पर खाक डाल दी। आपके सरे मुबारक पर खाक खाक डाल दी। खाक यानी मिट्टी डाल दी।
आप इसी तरह घर आए, आपकी साहबजादी पानी लेकर आई, सरे मुबारक को धोती जाती थी और बाप की ये सूरत देखकर रोती जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की जान यानी प्यारी जान, रो नहीं, अल्लाह तेरे बाप को यूं न छोड़ेगा, तेरे बाप को अल्लाह ताला यूं न छोड़ेगा। और एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला तेरे बाप के लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल होकर रहेगा। और एक वाकया लिखा है, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के सहन में, काबे के सहन, सहन यानी आंगन, काबे के सहन में नमाज पढ़ रहे थे। कुरैश के सरदार जलसा जमाए हुए, जलसा जमाए हुए यानी मजलिस लगाकर बैठे थे। नमाज पढ़ते देखकर कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर कहने लगे कि कोई ऊंट की ओझरी लाकर इसकी गर्दन पर रख दे, ऊंट की ओझड़ी लाकर, इसकी ओझड़ी लाकर इसकी गर्दन पर रख दे। चुनांचे एक शरीर ने यह काम किया। ऊंट की ओझड़ी यानी वो जो ओझड़ी वजड़ी होती है, वजड़ी हम आम जुबान में कहते हैं, तो वो बड़ी बोझ, बड़ी वजन होती है। तो चुनांचे एक शरीर ने यह काम किया, इस बोझ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ दब गई, पीठ दब गई। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से जाकर इसकी खबर की यानी बतलाया बतलाया, तो वो आई और किसी तरह इस गंदगी को हटाकर दूर कर दिया। एक दफा एक शरीर यानी एक नालायक ने, एक बदमाश, शरीर ने बदमाश, एक शरीर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर का फंदा डालकर, फंदा यानी चादर को ऐसे गोल करके चादर का फंदा डालकर चाहा के गला घोंट दे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने दौड़ कर आकर आपको बचा लिया और उससे कहा, क्या एक शख्स की जान सिर्फ इतनी बात पर लेना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है। तो इतनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के खातिर तकलीफें उठाई। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा, सरवर आलम, कौनैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बनाया, उनको इतनी तकलीफ दी जा रही है। अब एक ताइफ का सफर हम पढ़ रहे हैं। मक्के से 40 मील के फासले पर ताइफ का सरसब्ज व शादाब शहर था। सरसब्ज व शादाब, सरसब्ज व शादाब यानी हरा भरा, हरा भरा शहर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों की ये हालत देखकर ये तय किया कि ताइफ जाएं और वहां के रईसों को, वहां के दौलतमंदों को, वहां के मालदारों को, रईस यानी मालदार को इस्लाम का पैगाम सुनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर ताइफ गए। ताइफ एक गांव का नाम है। और वहां के रईसों को दीन दीन हक की दावत दी, मगर अफसोस कि उनमें से एक ने भी उसको कबूल न किया। और इसी पर बस नहीं, बल्कि बाजार के शरीरों को उभार दिया। बल्कि और किताबों में है, बाज किताबों में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाकर सबसे बड़े बड़े 3 रईसों से मुलाकात की। तो एक 3 सरदारों से मुलाकात की। तो एक ने कहा, क्या आपके सिवा अल्लाह को कोई दूसरा मिला ही नहीं? नौज बिल्लाह, इतने सख्त अल्फाज से कहे। एक ने कहा, ओहो, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। नौज बिल्लाह। और एक ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही गुस्ताखी की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही रंजीदा हुए और बहुत दिल बर्दिश्ता हुए और वहां से निकलने लगे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शहर के अवबाश लड़के, शहर के जो शरीर लड़के होते हैं, उनको उभारा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताएं। वो अब किताब में है, वो हमारी किताब में, वो रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए और जब आप इधर से गुजरने लगे तो आपके पांव पर पत्थर बरसाए, पत्थर मारे, बरसाए यानी पत्थर मारे।
जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव लहू लुहान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द के मारे कहीं बैठ जाते तो वो बाजू थाम कर उठा देते, यानी हाथ पकड़ कर उठा देते, फिर चलाते, फिर शरीर, वो जो शरीर लड़के थे, फिर पत्थर मारते और गालियां देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर बैठ जाते। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली, यानी एक बाग में आकर जरा बैठ गए। ये कैसी बेकसी का वक्त था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अल्लाह का एक फरिश्ता नजर आया, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम सुनाया कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो ताइफ वालों पर इन पहाड़ों को दे मारा जाए कि वो कुचल कर रह जाए, यानी दो पहाड़ों को मिलाकर इनको पीस दिया जाए। अल्लाह के नबी आप इशारा करें, आप कहें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर मेहरबान होकर जवाबन अर्ज किया, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तो इनकी नस्लों से किसी को पैदा करेगा जो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत करेगा और किसी को उसका शरीक न ठहराएगा। यानी अगर ये ईमान न लाए तो क्या हुआ, इनकी नस्लों में तो कोई ना कोई ईमान ले आएगा। किताबों में है कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूं, मैं किसी के लिए बददुआ नहीं करूं। तो ये थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और उम्मत के साथ इतना प्यार कि पत्थर खाकर भी दुआएं देना, ये नबी ही की शान थी। कबीलों में दौरा, दौरा यानी कबीलों में गश्त, कबीलों में घूमकर दीन की दावत देना। ताइफ के नाकाम सफर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजबूत इरादे पर कोई असर न किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादे को कोई छोड़ा नहीं और मजबूत इरादा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया, कस्द किया, नहीं इरादा किया कि एक एक कबीले में फिर कर अल्लाह का बयान सुनाए। इसके लिए मक्का में हज का कुदरती मौसम, कुदरती मौका मौजूद था। उस जमाने में अरब के गोशे गोशे से लोग आते थे, यानी अरब के कोने कोने से, गोशे गोशे से नहीं, कोने कोने से लोग आते थे हज में और कई कई दिन ठहरते। मक्के के आसपास मेले भी लगते थे। मेला यानी कहेंगे जतरा भी कह सकते हैं उसको। मेले भी लगते थे और यहाँ भी आदमियों का जमाव होता था, आदमियों का जमना होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मजमुओं में से एक एक कबीले में फिर फिर कर वाज कहना शुरू किया, नसीहत करना, अल्लाह की दीन की बात सुनाना शुरू की और कुरान की आयतें सुनाना शुरू की। इसका असर ये हुआ कि पूरे मुल्क में इस्लाम की आवाज फैल गई। अब देखिए, औस और खजरज में इस्लाम, औस और खजरज दो कबीले हैं मदीने में। ये जो बात है इससे पहले कि मक्का की बात है, अभी मदीने का तज़किरा ही नहीं, अब यहाँ से मदीने का तज़किरा। औस और खजरज में इस्लाम, इन्हीं कबीलों में जो हज को आए हुए थे, उन कबीलों में एक कबीला शहर यसरब के रहने वाले दो मशहूर कबीले थे। उन्हीं कबीलों में शहर यसरब, यसरब किसका नाम, मदीने का नाम, शहर यसरब के रहने वाले दो मशहूर कबीले भी थे जिनके नाम औस और खजरज हैं। औस और खजरज ये कबीले उस शहर में मुद्दत से रहते थे, नहीं बहुत दिनों से, मुद्दत से रहते थे, नहीं मुद्दत से रहते थे, नहीं बहुत दिनों से रहते थे और काश्तकारी करते थे। काश्तकारी यानी खेती बाड़ी करते थे। काश्तकारी यानी खेती बाड़ी करते थे। उनके आसपास यहूदी आबाद थे जो सौदागर और महाजिन थे। सौदागर थे और महाजिन यानी हम कहेंगे आजकल के मारवाड़ी, महाजिन यानी मारवाड़ी थे। लोगों को सौद लोगों को सूद और पैदावार पर कर्ज देते थे और बड़ी सख्ती से वसूल करते थे। ये लोग कौन, यहूदी,
ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे, औस और खजरत। उन पर ये सरमाए वाले यानी मालदार यहूदी, मालदार सरमाए वाले यहूदी यानी मालदार यहूदी गोया एक तरह की हुकूमत करते थे। ये दो कबीलों पर हुकूमत करते थे। गर्ज ये दोनों कबीले कुछ तो आपस में लड़ लड़ कर और कुछ यहूदियों के फंदे में आकर फंस कर तबाह हो गए। ये दोनों कबीले तबाह हो गए थे। यहूद की आसमानी किताबों में एक पैगंबर के आने की खबर और यहूद की अक्सर महफिलों में उसके पैदा होने की गुफ्तगू यानी उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की गुफ्तगू रहा करती थी। ये आवाजें औस और खजरत के कानों में भी पड़ा करती थी, यानी उनके उन औस और खजरत के कबीले के उनके लोगों के कानों में पड़ा करती थी। नबूवत के 10वें साल रजब के महीने में इन दोनों कबीलों के कुछ लोग मदीना आए। कुछ लोग मदीना आए, नहीं मदीना नहीं आए बल्कि औस और खजरत मक्का के रहने वाले दोनों कबीलों के कुछ लोग मक्का आए। औस और खजरत के कुछ लोग इन इन दोनों कबीलों के कुछ लोग मक्का आए। औस और खजरत ये दोनों मदीना के रहने वाले लोग हैं कबीले। कुछ लोग कहाँ है? मक्का आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़बा के मकाम पर इनसे मिले और उनको अल्लाह का कलाम सुनाया। उन लोगों ने एक दूसरे को देखकर कहा, ये तो वही पैगंबर मालूम होता है। कहीं ऐसा ना हो, यानी ये तो वही पैगंबर मालूम होता है जो यहूद से हम सुनते हैं कि एक नबी आने वाले हैं, ये तो वही पैगंबर मालूम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि यहूद हमसे बाजी ले जाएं। बाजी ले जाएं यानी हमसे पहले वो सबकत ले जाएं, पहले ईमान ले आए। कहीं कहीं ऐसा ना हो हम पहला ईमान लेकर। ये कहकर सब ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। ये 6 आदमी थे। दूसरे साल यसरब से 12 आदमी, यसरब यानी मदीने से 12 आदमी आकर मुसलमान हुए और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। ये भी एक ये इरादा तमन्ना जाहिर की, ख्वाहिश यानी तमन्ना जाहिर की कि हमारे साथ कोई ऐसा आदमी भेजा जाए जो हमको इस्लाम की बातें सिखाए और हमारे शहर में जाकर वाज कहे, यानी दीन की बात कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम के लिए हजरत मुसअब इब्ने उमैर को चुना। मुसअब किसको चुना? मुसअब इब्ने उमैर को चुना। कहाँ जाने के लिए? मदीना जाने के लिए, मदीने में जाकर दीन की तबलीग करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को चुना। ये मुसअब इब्ने उमैर अब्द मुनाफ के पोते और पुराने मुसलमानों में से थे। ये उन लोगों के साथ यसरब आए और यहाँ आकर लोगों के घरों में फिर कर इस्लाम का वाज कहना शुरू किया, यानी इस्लाम की तालीम देनी शुरू की। इस वाज के असर से लोग मुसलमान होने लगे और 1 साल के अंदर अंदर इस शहर के अक्सर घराने मुसलमान हो गए। यह हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां जाकर दीन मेहनत की। जी। अब उक़बा की बैअत ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, पेज नंबर 46 में इंशाल्लाह वो कल हम पढ़ेंगे। अल्फाज माने सबक में तो हम बोल ही चुके हैं, फिर भी एक मरतबा दोहरा देता हूँ। सरसब्ज शादाब, हरा भरा। और यानी वही पेज नंबर 44 में सरसब्ज शादाब यानी हरा भरा। और 45 में मुद्दत से, यानी इस शहर में मुद्दत से रहते थे, है ना। मुद्दत से यानी बहुत दिनों से रहते थे। और पेज नंबर 44 में है मेले। मेले यानी मेले यानी बड़ा जो बाजार होता है, बड़ा बाजार, उसको कहते हैं मेला। और उसी में है गोशे गोशे से इस्लाम ने, कोने कोने से दुनिया के अरब के कोने कोने से इस्लाम फैल गए। और इसी तरीके से इसमें है काश्तकारी करते थे औस और खजरज के। उसी सबक में 45 में काश्तकारी यानी खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी। और हाँ, सौदागर तिजारत, महाजन मारवाड़ी वही तिजारत के लोग।
जो माहिर होते हैं। महाजन यानी वो मालदार जो अपने निचले लोगों को निचले लोगों को अपना गुलाम बनाए रखते हैं। और इसी तरीके से है उसमें फंदे में, फंदे यहूदियों के फंदे में फंस गए, यहूदियों के फंदे में फंस गए। फंदे यानी यहूदियों के चाल में फंस कर तबाह हो गए। यहूदियों की चाल, यहूदियों का काम ही ये था कि मुसलमानों को लड़ाना, दोनों कबीलों को लड़ाना, ये पहले से ही है। और इसी तरीके से पेज नंबर 46 में है, बाजी से हमसे बाजी ले जाएं, बाजी ले जाएं, हमसे पहले चले जाएं। अच्छा, इससे पहले हमने जो बैअत उक़बा वो जो हमने पढ़ी है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैब अबी तालिब में कैद होना। देखो सारे मुसलमानों ने, कुफ्फारे मक्का ने तो उनका बायकाट किया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके खानदानों का, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था उनके खानदान के मुसलमान भी, और जो लोग अभी मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था। और 3 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके खानदान को कोई एक लुकमा भी पहुंचने नहीं दिया था। बाहर से अगर कोई तिजारत बेचने के लिए आता था तो अबू जहल ऐलान करता था कि अपना सामान इनको सस्ता मत बेचो, बिल्कुल महंगा, डबल टिब्बल कीमत लगाकर बेचो। कोई अगर नुकसान होगा तो मुझसे ले लो, मैं दे दूंगा। इतना नालायक था अबू जहल। और जो लोग ये लेकर गए थे, जितना सामान, जितना खाने लेकर गए थे, वो चंद दिनों में खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे? तो ये बाइकाट। तो आज भी अल्लाह मुआफ फरमाए कि फिलिस्तीन के लोग भी इसी की एक झलक है। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जल्द नजात अता फरमाए, और अल्लाह ताला सब पर, अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया और अल्लाह ताला रहम का, करम का मामला फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा। اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك سبحان ربك